Hello students, I am Dr. Ritu Agrawal, and in my earlier session on communication, process and importance, we learned what is communication, what makes communication process effective, and we even figured out why communication is essential in today's world. Now, in this session, we will talk about types of communication. Yes, what we see that communication is generally classified into the following types. The first one is verbal communication, and it is further subdivided into oral and written communication. The second one is non-verbal. Third is intrapersonal. Fourth one is interpersonal. Fifth is extrapersonal. The sixth type of communication is mass, and the seventh one is media. So let us start with the verbal communication first. Since a professional has to spend a large amount of his or her working time in speaking and listening to others, besides reading and writing, most of the time he has to use language as a vehicle of communication. So, this type of communication is termed as verbal communication. So, what is verbal communication? Everybody, कोई भी हो, चाहे वो प्रोफेशनल है चाहे हम आमजन हैं, हर एक को अपना समय किस में निकालना पड़ता है? या तो हम लिख के कम्युनिकेट करते हैं, या हम बोल के कम्युनिकेट करते हैं, या हम सुनते हैं. तो हर समय हमें कोई ना कोई एक माध्यम चाहिए होता है. और अगर हम लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं कम्युनिकेशन में, तो उसको हम कहते हैं फिर वर्बल कम्युनिकेशन. Now, verbal communication thus stands both for the spoken and written word used in the communication process. So, either we are speaking the words, अगर हम बोल के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं या हम लिखने में शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो दोनों ही कौन से कम्युनिकेशन है? वो वर्बल कम्युनिकेशन है. So let's talk about the oral communication first. Now, by the word oral we mean मौखिक and written means लिखित. So we have already understood what do we mean by verbal communication, that we are making use of language or words. Now in oral communication, जैसे कि हम हिंदी में कह रहे हैं मौखिक है ये, a face to face interaction between the sender and the receiver is there. तो ओरल कम्युनिकेशन की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पे भेजने वाला और जो रिसीवर है दोनों ही आमने सामने उनका इंटरेक्शन हो रहा है, वो मौखिक रूप से एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं. In this type of communication, there could be two or more than two persons who use spoken language as a medium of communication. For instance, whenever we make presentations, deliver speeches, participate in group discussions, appear for interviews, or simply interact with somebody, we are involved in oral communication. इसमें लिखा है मिनिमम 2 लोग तो होते ही होते हैं इसमें, लेकिन 2 से ज़्यादा, जैसे कि कोई एक जना बोल रहा है और काफ़ी सारे लोग उसको सुन रहे हैं. जैसे आप कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हो, तो यह यहाँ ओरल कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है ये. तो ओरल कम्युनिकेशन में हम लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं बोलकर. नाउ व्हाट इज़ रिटन कम्युनिकेशन? इन कॉन्ट्रास्ट टू ओरल कम्युनिकेशन, इन दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन द सेंडर यूजेज द रिटन मोड टू ट्रांसमिट हिज हर मैसेजेस. तो यहाँ बोल कर नहीं, उल्टा लिख कर अपनी बात बताई जाती है. तो इसलिए इसमें ज़रूरी नहीं है कि रिसीवर उसी समय वहीं मौजूद हो. Reports, proposals, books, handbooks, letters, emails, etc. come in this category. So, written communication is routinely used for documentation purposes in business and government organizations. तो written communication का अपना महत्व है. वो किसी भी चीज़ को डॉक्यूमेंटेशन को रखने के लिए या रूटीन में कोई काम होता है उसके लिए हर जगह यूज़ में आता है, चाहे वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई बिजनेस हो. और हम अभी चूँकि सिर्फ टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन एक बार पढ़ रहे हैं, एक बार हम ओरल और रिटन कम्युनिकेशन के क्या फ़ायदे हैं, अपने क्या नुकसान है, दोनों के मेरिट्स और डिमेरिट्स अलग से बात करेंगे हम उसके ऊपर डिटेल में. नाउ लेट अस कम टू द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. तो नॉन वर्बल, जैसा कि हमने पढ़ा था वर्बल में वी मेक यूज़ ऑफ लैंग्वेज एज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो नॉन वर्बल में वी आर नॉट गोइंग टू मेक यूज़ ऑफ लैंग्वेज, स्टिल वी आर कम्युनिकेटिंग. सो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग इन इट्स ओन. ये खुद में बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आप लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, उसके बाद भी आप उसको कम्युनिकेट कर रहे हो. So, when a message is communicated without using a word, the process requires non-verbal cues to be transmitted and received.
जब हम किसी भी शब्द का इस्तेमाल नहीं करते कम्युनिकेशन में, तो उस दौरान हमें क्या चाहिए होता है, नॉन वर्बल क्यूज़। क्यूज़ का मतलब होता है हिंट्स। तो जब हमें नॉन वर्बल हिंट्स देते हैं और वही नॉन वर्बल हिंट्स ट्रांसमिट भी किए जाते हैं और रिसीव भी किए जाते हैं, तब हम कहते हैं कि वह पूरा कम्युनिकेशन कैसा है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। Now, non-verbal communication forms an important part in the world of professional communication. It can be further categorized into two parts. हम non-verbal communication को दो parts में divide कर सकते हैं, body language में और paralinguistic features में. Now, body language क्या होती है? Body language involves aspects such as personal appearance, walk, gestures, facial expressions, hand movements, posture and eye contact. कहते हैं कई बार कि आप मुंह से कुछ नहीं बोलते, लेकिन आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ आपके व्यक्तित्व के बारे में बताती है। और ये बॉडी लैंग्वेज क्या क्या इन्वॉल्व करती है? इस बॉडी लैंग्वेज में आपका चलने का तरीका, दिखने का तरीका, आपके फेस के एक्सप्रेशंस, आपके हाथ का मूवमेंट, आपके बैठने का तरीका, आई कांटेक्ट का तरीका, ये सब चीज़ें आपकी बॉडी लैंग्वेज में शामिल होती हैं। द पैरालिंग्विस्टिक फीचर्स जो एक हिस्सा है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का, दैट इंक्लूड्स अ पर्सनस वॉइस, वॉल्यूम, पिच, रेट, पॉजेज, आर्टिकुलेशन, वॉइस मॉड्यूलेशन एसेट्रा। तो आप ये देखेंगे कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ना सिर्फ हमारे बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है, ये हमारे बोलने के तरीके से भी, हमारी वॉइस कैसी है बोलने के दौरान, हम किस वॉल्यूम पे, पिच पे बात कर रहे हैं, हमारी बोलने की रेट क्या है, हम फटाफट बोलते हैं या पॉज लेके बोलते हैं, हमारी वॉइस मॉड्यूलेशन कैसी रहती है, ये सब भी हमारे व्यक्तित्व के बारे में बहुत सारी बातें बताती हैं। अब हम थर्ड टाइप ऑफ कम्युनिकेशन पे जाते हैं, जो कि है इंट्रापर्सनल। इंट्रा शब्द का मतलब होता है विद इन, और चौथा वाला जो है इंटर, इंटर शब्द का मतलब हमेशा होता है बिटवीन। तो जो हम पढ़ रहे हैं अभी इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, इंटर का मतलब होता है विद इन, स्वयं के अंदर जब हम कोई कम्युनिकेशन कर रहे हैं, स्वयं से हम जब कोई संवाद करते हैं, उसको कहते हैं इंट्रापर्सनल। So, interpersonal communication implies individual reflection, contemplation and meditation. जब हम अपने आप का सर्वेक्षण करते हैं, आत्मनिरीक्षण करते हैं, जब हम स्वाध्याय करते हैं, उसको हम इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। सो व्हेनेवर कम्युनिकेशन टेक प्लेस विद इन वंस ओन सेल्फ, जब भी आप अपने आप से संवाद कर रहे हैं, इट इज टर्म्ड एज इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन. नाउ वन एग्जांपल ऑफ दिस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इज ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन. It is also believed that this type of communication encompasses communicating with the divine and with spirits in the form of prayers and rites and rituals. ये आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है कि हम मेडिटेट करते हैं, अपने बिल्कुल वहाँ उस लेवल पे पहुँच जाते हैं जहाँ हम एहसास कर पाते हैं कि हाँ, हम हमारे पूर्वजों से या हम डिवाइन स्पिरिट से बात कर पा रहे हैं। तो उस वो किस तरीके का हम जो मेडिटेशन है उसको हम कहेंगे इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन. When let's talk about the interpersonal communication, तभी इंट्रा वाला और अच्छे से क्लियर हो जाएगा. Now, interpersonal communication is a direct, written or oral communication that occurs between two or more persons. तो inter means between, दो इंसान के बीच में कोई भी संवाद इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहलाता है, और ये किसी भी तरीके से हो सकता है, चाहे से ओरल हो चाहे से रिटन हो. The oral form of this type of communication, such as dialogue or a conversation between two or more people, is personal and direct and permits maximum interaction through words and gestures. तो हम ये कहें कि इंटरपर्सनल में अगर हम ओरल कम्युनिकेट करते हैं, तो उस ओरल कम्युनिकेशन में हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बात कह सकते हैं और अपने विचार जो है सामने वाले के सामने रख सकते हैं. तो इंटरपर्सनल में भी ओरल कम्युनिकेशन जो होता है उसमें हम मैक्सिमम इंटरेक्शन कर पाते हैं. Now let's talk about the extrapersonal communication. So extrapersonal communication does not take place only among human beings. नो एक्स्ट्रा कम्युनिकेशन मतलब कम्युनिकेशन जो है वो खाली ह्यूमन बींग्स के बीच में नहीं होता, हमें दूसरे लोगों के बीच में भी कम्युनिकेशन देखने को मिलता है. वी ऑब्जर्व, इफ़ यू ऑब्जर्व केयरफुली, वी फाइंड दैट समटाइम्स वी डू कम्युनिकेट विद नॉन ह्यूमन एंटिटीज़. कई बार हम नॉन ह्यूमन एंटिटीज से भी कम्युनिकेट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स, एनिमल्स एक्सेट्रा. And for instance, whenever we command our pet dog or cat to sit, stand or go, they immediately follow our orders. हम जैसे ही हमारे पेट डॉग हैं, एनिमल्स हैं, उनसे कम्युनिकेट करते हैं, उनको आने जाने निर्देश देते हैं, वो तुरंत सुन लेते हैं. सो वेन एवर वी केयर्स देम और पैट ऑन देयर बैक फॉर डूइंग समथिंग गुड, दे आर इलेटेड एंड दे स्टार्ट वैगिंग देयर टेल्स. और जब हम उनकी तारीफ़ करते हैं, उनकी पीठ थपथपाते हैं, तो अपनी टेल को वैग हिलाने लग जाते हैं. तो हमें समझ में आता है कि एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन मतलब नॉन ह्यूमन एंटिटी से जब कम्युनिकेट हम करते हैं,
तो उसको एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं।